we will start the next topic, that is the cell wall. Okay, cell wall. So now what is cell wall and who discovered the cell wall? So first, the cell wall was discovered by Robert Hooke. Cell wall was discovered by the Robert Hooke, जैसे हमने आगे भी पढ़ा था सेल हिस्ट्री में. Okay, and on which plant cell he performed the study? The Robert Hooke studied on the cork cell, okay, under his crude microscope. Now the cell wall, actually the cell wall is a rigid non-living, and the rigid structure, it is non-living and rigid structure which is present surrounding the cell membrane or outside the cell membrane in the plant cell. Rigid structure which present surrounds the cell membrane in plant cell. Okay, so cell wall, who discovered the cell wall? Robert Hooke discovered the cell wall. The second point, cell wall is the non-living part and it is rigid, मतलब एकदम जिद्दी होगा. So it is non-living and rigid structure which covered outside the cell membrane. वो cell membrane से बाहर होता है in the plant cell. Sometimes bacteria, fungi also possess the cell wall. Okay, not only plant cell, not only plant, but also bacteria, some protist and fungi also possess the cell wall. Means cell wall is not only present in the plant, but this cell wall is also found in bacteria, protist and the fungi. Actually, cell wall is not only responsible for provide the shape of the plant. Okay, अगर function देखें, so function में, in function, cell wall is not only provide the shape of the cell, it also protect the cell from mechanical damage and certain infection. So actually cell wall is not only responsible for provide the shape of the cell, but also it is protect the cell from the mechanical damage. बाहर से अगर कोई डैमेज होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, as well as it protect the cell from the various infection. It protect the cell from various infection as well as it help in mechanical damage होने से बचाएगा plants. Okay, now also it help to cell interaction. It help in cell to cell interaction. Cell to cell
interaction, and it also act as a barrier for undesirable substance. मीन्स जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए वो एज अ बैरियर भी एक्ट करेगा. सो इट इज हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन एज वेल एज it is responsible for, or it is act as a barrier for undesirable substance. So function of the cell wall is it is not only provide the shape of the cell but also it help in the protect the cell from the mechanical damage and the certain infection. Also it help in cell to cell interaction. दो सेल को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेंगे and it is act as a barrier for the अनडिजायरेबल सब्सटेंस. मीन्स जो अनडिजायरेबल है, जिसकी सेल को जरूरत नहीं है, उसको अंदर आने देगा नहीं. क्लियर बेटा, यहां तक पता चल गया. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल वॉल. So there are mainly three type of the cell wall. One is the primary cell wall. Second one is secondary cell wall, and third one is tertiary cell wall. Now what is primary cell wall, secondary cell wall and tertiary cell wall? So always suppose this is the cell, right? This is one cell and here it is the second cell. So this is the outermost wall. This is the outermost covering wall. It is known as the primary cell wall. This is called the primary cell wall. हम प्राइमरी को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 डिग्री, सेकेंडरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिग्री एंड टर्सरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिग्री. ऑलवेज this primary cell wall is made up of cellulose, hemicellulose and the pectin, and it is very thin and elastic and it is most outer side. So it is outer side, outermost. It is very thin and elastic and it is made up of hemicellulose and pectin. So it is the very thin and elastic in nature and it is made up of hemicellulose and the pectin. Okay, and it is outermost side. Now the second one is the secondary cell wall. So this is the secondary wall. And this secondary wall is somewhat thick than the primary one. It is thick than the primary one. Okay, so this is the सेकेंडरी वॉल. बच्चों आपको प्रॉपर दिख रहा है ना? इफ यू एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, दिस इज द सेकेंडरी वॉल. So this secondary wall is thick. It is also made up of hemicellulose and pectin, but it is absent in the meristematic cell. So secondary wall is inner to primary wall. It is thick and made up of hemicellulose plus pectin, and it absence in
meristematic cell. It is present in the meristematic cell. So they are the thick. The primary one is thin. This is thick. Both are. This is primary one is also made up of hemicellulose and pectin. Secondary is also made up of hemicellulose and pectin. Primary is present in all type of this plant cell, but secondary is not present in the meristematic cell. Now question होगा what is meristematic cell? So meristematic cell, it's a plant cell which has the high cell division capacity. Okay, प्लांट में अगर हम बात करें कि ये प्लांट में जो स्टेम होगा उसका जो टॉप होगा, टॉप पे ऑलवेज मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे. दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड इट एडेड अ न्यू सेल इन द अपर डायरेक्शन. वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाएंगे और ऊपर की तरफ नए सेल ऐड करते जाएंगे. जस्ट मिनट बेटा, एक कॉल है. सो क्लियर, यहां तक पता चल गया. सो secondary wall it absent in the meristematic cells. Now the next one is tertiary one. Next one is tertiary. So tertiary is found in the xylem and the tracheids. Okay, it is innermost side, and it is made up of hemicellulose and xylem, and it is found in tracheids and vessels. Okay, and it is help in the conduction of water. It help in water conduction. So tertiary wall, it is the innermost side. This is the tertiary one, right? This is the tertiary cell wall. Tertiary wall. So primary, secondary and tertiary. Tertiary is the innermost. It is made up of hemicellulose and xylem. It is made up of hemicellulose and the xylem, and it is found in tracheids and the vessels. जो xylem, हम सबको पता है xylem में 4 पार्ट होते हैं. xylem tracheids, xylem vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. तो उसमें से xylem tracheids और vessels में होगा, और इसका मेन काम क्या है? It is help in conduction of water. So help in water conduction. Clear beta? So this is the 3 type of the cell wall: primary, secondary and the tertiary. The primary, it is the outermost and it is thin and elastic, made up of the hemicellulose and pectin. Secondary, it is inner to the primary one. It is thick, आना करता थोड़ी thick असे, and it is made up of hemicellulose and pectin. But the secondary में आपको खास कौन सी चीज याद रखनी है? It is absent in meristematic cell. Tertiary, it is the innermost. It is made up of hemicellulose and xylem. Where it is present? It is present in tracheids and the xylem vessels. अब tracheids and xylem vessels में होगा तो उसका फंक्शन क्या होगा? It help in the transportation of water or the conduction of water. Now बच्चों आगे देखते हैं कि कौन से सेल में सेल वॉल किसका बना होता है. So in the algae, the cell wall is made up of cellulose, galactans, mannose and calcium carbonate. मीन्स algae में सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होगा? galactans, cellulose, mannose and the calcium carbonate. In most of the plant, हायर प्लांट की बात करें, सो इन हायर प्लांट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, देन हेमीसेल्यूलोज, देन प्रोटीन एंड देन पेक्टिन.
बट आपको अब ऐसा लगेगा कि हेमीसेल्यूलोज क्या है, तो हेमीसेल्यूलोज इज द डेरिवेटिव ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का ये एक टाइप है। प्रोटीन, पैक्टिन क्या है, तो पैक्टिन इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, क्लियर बेटा। मैनोज क्या है, तो मैनोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये सारे के सारे चीज हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ओके, व्हेन वी डिस्कस द बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द हायर प्लांट, फिर उसके बाद बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दी पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या होगा, सो उसमें NAG और NAM एंड NAG का कॉम्बिनेशन होगा, NAM एंड NAG। अब ये NAM एंड NAG क्या है, सो यहां पर मैं लिखता हूं NAM का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और NAG का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAM एंड NAG। मीन्स पेप्टिडोग्लाइकेन है, पर पेप्टिडोग्लाइकेन में केमिकली क्या होगा, तो NAG और NAM होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर बच्चों, यहां तक पता चल गया। अब नेक्स्ट है फंगस। तो फंगस सेल वॉल में क्या होगा, तो फंजाई का सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड दिस काइटिन इट पासेस दी NAG, उसमें क्या होगा, NAG होगा, NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होगा। क्लियर बेटा। फिर आगे देखते हैं कि डायनोफ्लैजेलेट्स, क्या, डायनोफ्लैजेलेट्स तो बेटा डायनोफ्लैजेलेट जो है ना, वो प्रोटिस्टा है। क्या है, प्रोटिस्टा। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वैसे ही डायनोफ्लैजेलेट है। हम जब सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम डायनोफ्लैजेलेट को डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां डायनोफ्लैजेलेट का सेल वॉल किससे बना होगा, सेल्यूलोजिक प्लेट, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक प्लेट से बना होगा। फिर है डायटम, वो भी एक प्रोटिस्ट है, डायटम्स वो भी एक प्रोटिस्ट है। तो डायटम्स जो होगा उसका सेल वॉल किससे बना होगा, तो उसका सेल वॉल बना होगा सिलिका से। किससे, सिलिका, एक्चुअली इट इज द सीमेंट लाइक मटीरियल, ओके, सिलिका। फिर यूग्लिना, आप सबको पता है यूग्लिना। तो यूग्लिना में एक्चुअली सेल वॉल नहीं होता, उसमें प्रोटीन लेयर होता है, और उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेलिकल। ओके, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट होगा, बट अ स्मॉल अ थिन प्रोटीन लेयर, बट अ थिन प्रोटीन लेयर is there known as पेलिकल। जो थिन प्रोटीन लेयर होगा उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ओके, मीन्स different organism, different plant has the different kind of the cell wall. Algae has cellulose, galactans, mannose and calcium carbonate. आपको ये रटना पड़ेगा बेटा। Higher plant has cellulose, hemicellulose, protein and the pectin. Bacteria has peptidoglycan, but peptidoglycan में केमिकली क्या होगा, NAM and NAG. NAM का फुल फॉर्म क्या है, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG का क्या है, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। अब फंजाई में क्या होगा, काइटिन, कई लोग इसको चिटिन भी बोलते हैं, बोल सकते हो, NAG होगा उसमें। डायनोफ्लैजेलेट्स, तो डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या होगा, तो इट हैज द सेलुलोजिक प्लेट। डायटम्स में सिलिका होगा, और यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होता, बट दे हैव अ प्रोटीन लेयर, और जो थिन प्रोटीन लेयर होगा उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो यहां तक बेटा पता चल गया सबको। सो दिस इज ऑल अबाउट द
composition of the cell wall in different living things. Okay, now one more thing, middle lamella. What is middle lamella? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि this two cells primary cell wall are joined together with the help of the some material, and that is known as the middle lamella. This is called the middle lamella. Okay, so यहां पर हम लिखते हैं मिडल लैमेला. डेफिनेशन क्या होगा मिडल लैमेला का? मिडल लैमेला actually it made up of the calcium pectate and magnesium pectate. It is made up of calcium pectate and magnesium pectate से बना होगा बेटा. किससे बना होगा? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट. इट इज द जॉइनिंग ऑफ द टू प्राइमरी सेल वॉल. joining material of two adjacent primary cell wall. adjacent मतलब पास, जो पास दो प्राइमरी सेल वॉल होता है उसको जो ज्वाइन करता है उसको हम मिडल लैमेला बोलते हैं. क्लियर बेटा? यहां तक पता चल गया. एंड नाउ द लास्ट थिंग इज, यहां पर दोनों के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा. दोनों के बीच में क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. ओके, अगर नहीं दिख रहा बेटा तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं. चलो इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं कि दिस इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्मेटा. तो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा? सो plasmodesmata actually it is the connection of two cell, cytoplasma to cytoplasma connection of two cell. Means it is cytoplasma to cytoplasma connection of टू प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल. ओनली प्लांट सेल. मीन दो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. इतना पता चल गया बेटा? नाउ अब एक दो चीज है कि प्लांट में, यहां मैं बताता हूं कि प्लांट में गोल्गी बॉडी के प्लांट में गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम बोलते हैं. डिक्टियोजोम बोलते हैं. और वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? तो दे सिंथेसाइज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज मीन्स प्लांट सेल वॉल का जो मटेरियल है वो किसमें से बनता है? गोल्गी बॉडी में से. बट एक और पार्ट होता है स्फेरोजोम्स, जिसमें लिपिड सब्सटेंस क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं. जैसे कि आप ले लो लिग्निन होता है. यहां पर जाइलेन भी मैंने बताया. तो जाइलेन वो सारे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस हैं. वो सारे कैसे? लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस हैं. ओके, और वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस कहां फॉर्म होते हैं? स्फेरोजोम्स में. जस्ट अ मिनट. टॉपिक इज थियरीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन. थियरीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं अभी. सो सेल मेम्ब्रेन को
फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं बेटा। ओके, और वन गेव द लिपोइडल theory. According to him, the cell membrane is single lipid layer. According to him, cell membrane is the single layer of lipid. So, किसने दिया बेटा? इन 1902 में किसने? ओवरटन गिव्स द मॉडल, और उसने क्या बोला? इट्स ए सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। वो है क्या? इट्स ए सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। यहां पता चला बेटा इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द सैंडविच मॉडल। और इट इज नोन एज ट्राइलेमेलार मॉडल। सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमेलार मॉडल। हु गेव दिस मॉडल? सो इन 1935, द डेवसन एंड Danieli gives this model. Okay, and according to them, the cell membrane is triple layer. According to them, the cell membrane is triple layer. कैसे होगा? कि द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय प्रोटीन बोथ द साइड। लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन कवर्ड बाय प्रोटीन बोथ द साइड। मीन्स कैसे होगा बेटा? तो जस्ट यहां पर देखो कि लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन मीन्स ये है लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन वन। दिस इज द लिपिड। मैं आपको बताता हूं ये लिपिड कैसे है। ओके, इट इज द फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड ऐसे अरेंज होंगे, और दूसरा जो फॉस्फोलिपिड का लेयर होगा वो ऐसे अरेंज होगा, उसके एग्जैक्ट अपोजिट। क्लियर बेटा? डन। और जो प्रोटीन लेयर होगा वो उसके ऊपर यहां प्रोटीन लेयर अरेंज होगा। दिस इज द प्रोटीन लेयर। ये शायद एक ही कलर जैसा दिखेगा, तो मैं यहां रेड से बना देता हूं। दिस इज द प्रोटीन लेयर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सैंडविच मॉडल। बीच में लिपिड मीन्स बीच में बटर, ऊपर और नीचे ब्रेड के, इसलिए उसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। और यहां जो लिपिड होगा, दैट लिपिड इज this lipid is phospholipid. It is known as the phospholipid. The lipid part, the lipid is phospholipid, और ये जो phospholipid है उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ये जो राउंड मैंने दिखाया इट इज हेड, और जो हेड होता है वो किससे बना होता है? फॉस्फेट से बना होता है। और ये जो पार्ट है इट इज टेल, और वो बना होता है फैटी एसिड से बना होता है। मीन्स जो हेड होता है ना वो पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर। और उसको हम हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर सॉल्युबल, और जो नीचे टेल है इट इज
फोबिक, फोबिया, फोबिया मतलब डरना, दूर जाना। मीन सिंपल बेटा, जो टेल पार्ट है वो लिपिड पार्ट है, वो नॉन प्रोटीन है, नॉन पोलर है, उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हेड पार्ट है वो फॉस्फेट है, जो पोलर है, पानी में इजीली मिक्स हो जाता है। लिपिड पार्ट है वो पानी में मिक्स नहीं होता, जिसको पानी में मिक्स होता है ना उसको हम पोलर बोलते हैं, और जो पानी में मिक्स नहीं होता उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। अगर पानी में मिक्स हो रहा है तो हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब मिक्स होना, और पानी में मिक्स नहीं हो रहा मीन्स हाइड्रोफोबिक मतलब उससे दूर जाना। क्लियर बेटा, ये पता चल गया यहां तक। अब उसका जो वॉल थिकनेस होगा ना, तो यहां पर ये जो पार्ट होगा दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, जो प्रोटीन लेयर होगा दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, और जो लिपिड लेयर होगा दैट इज 35 एंगस्ट्रॉम। सो द टोटल थिकनेस इज 20 20 40 प्लस 35 दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा? 75 एंगस्ट्रॉम। अब उसका आप अरेंजमेंट देखो, तो अरेंजमेंट में जो फॉस्फेट है वो किसके साथ अटैच है? प्रोटीन के साथ अटैच है। सो द अरेंजमेंट फॉस्फेट bind with protein by hydrogen or ionic bond, and the lipid layer bind to each other। दो लिपिड लेयर एक दूसरे के साथ बाइंड है। यहां पर आप देखो दो लिपिड लेयर एक दूसरे के साथ बाइंड है विद द हेल्प ऑफ बाय वांडर वाल फोर्स। अब ये वांडर वाल फोर्स क्या है आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। इट इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड, वांडर वाल फोर्स बोलते हैं उसको, जिससे वो एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं। ओके, सो हु गिव दिस मॉडल? सो द मॉडल इन 1935 में किसने दिया? डेवसन एंड डेनियली ने दिया। क्लियर बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल लेयर भी बोलते हैं। क्यों ट्रिपल लेयर बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन है बोथ द साइड ऑफ द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। और लिपिड में कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड, जिसका हेड है वो फॉस्फेट से बना है और टेल है वो फैटी एसिड से बना है, और उसका अरेंजमेंट ऐसे होगा। क्लियर बेटा, यहां तक पता चल गया। नाउ थर्ड वन इज द unit membrane। Third one is unit membrane, and who proposed this unit membrane? So the unit membrane was proposed by Robertson, proposed by Robertson। और रॉबर्टसन ने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लिपिड बायलेयर and the protein are unevenly distributed on the membrane। The membrane is lipid bilayer membrane, lipid bilayer membrane, but the protein are unevenly डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोटीन कैसे हो गए? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। मीन्स इट इज अ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। जैसा डेवसन एंड डेनियली ने बताया था वो लिपिड बायलेयर ही होता है, पर डेवसन एंड डेनियली ने क्या बोला था? लिपिड के दोनों साइड प्रोटीन होंगे। यहां पर क्या बोला? प्रोटीन होंगे, बट कैसे होंगे वो कुछ नहीं बोला। द प्रोटीन आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। क्लियर बेटा, तो दिस इज यूनिट मेम्ब्रेन। एंड लास्ट वन इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेटा उसने क्या बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय इन 1972 and 73। हु गेव? सिंगर and Nicholson gave the fluid mosaic model। कब दिया? 1972 में। किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने बोला
कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है, द मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। उन्होंने भी बोला मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर। उन्होंने भी क्या बताया, जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। बट उन्होंने एक और चीज बताई कि प्रोटीन आर अरेंज्ड इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। प्रोटीन आर अरेंज्ड लाइक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। मीन्स यहां पर भी उन्होंने क्या बोला कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन ही है, बट प्रोटीन है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। अब ये स्पेसिफिक का मतलब क्या, तो ऐसे हो सकता है, देखो ये मैं यहां पर ब्रीफ बताता हूं बेटा आप सबको कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन मतलब ऐसे मेम्ब्रेन तो होगा ही, इसको हम कल डिटेल में तो पढ़ेंगे, और अभी मैं आपको सिर्फ यहां पर इसका प्रोटोटाइप दिखा देता हूं कि मॉडल कैसा होता है बेटा। के तो ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया। प्रोटीन कैसे होंगे का, या तो फिर वो सुपरफिशियल होंगे या फिर इंट्रिंसिक का मतलब ऐसे होंगे। क्लियर बेटा, पता चला। तो एक्सट्रिंसिक मतलब ये प्रोटीन, इंट्रिंसिक मतलब ये, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमने क्या देखा, 4 टाइप के मॉडल है। लिपॉइडल थियरी गिवन बाय ओवरटन 1902 में दिया, उसने बोला कि लिपिड मेम्ब्रेन एक ही लेयर होता है लिपिड का मेम्ब्रेन में। ओके, सैंडविच मॉडल, ट्राइलेमिनार मॉडल किसने दिया, डेवसन एंड डेनियली ने। उन्होंने क्या बोला कि लिपिड बाइलेयर होता है, तो 2 लेयर होते हैं लिपिड के, उनके दोनों साइड क्या होता है, प्रोटीन होता है। ओके, और ये जो लिपिड होता है वो कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड है उसमें हेड जो होता है वो पोलर होता है, टेल जो होता है नॉन पोलर होता है। इसीलिए फॉस्फोलिपिड को एम्फीपैथिक भी बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड का अगर हम नेचर बोले तो कैसा होता है, एम्फी मतलब ड्यूअल पैथिक, मीन्स वो लिपिड सॉल्युबल भी है और लिपिड इनसॉल्युबल भी है। क्लियर, सॉरी वाटर सॉल्युबल भी है और लिपिड सॉल्युबल भी है। ओके, तो ये हो गया। फिर आया यूनिट मेम्ब्रेन, किसने दिया, रॉबर्टसन ने, और उसने बोला लिपिड बाइलेयर तो है ही, बट प्रोटीन कैसा है, अनइवनली, कोई डेटा नहीं दिया प्रोटीन कैसे अरेंज होगा, प्रोटीन जैसे तैसे अरेंज होगा, ऐसा बोल दिया। और लास्ट वेल एस्टैब्लिश मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। उन्होंने बोला लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है बट प्रोटीन आर अरेंज इन अ 2 वे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। क्लियर बेटा, यहां तक पता चल गया। अगर यहां तक पता चल गया है तो आप मुझे थंब कर सकते हो। मैं इसका व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ओके बेटा, इंट्रिंसिक मतलब ऐसे अंदर हो गए, मेम्ब्रेन के अंदर हो उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे चिपके हुए उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। क्लियर, किसी को आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, और वन मोर थिंग बेटा, आपके जो भी फ्रेंड है, ओके, आपके स्कूल में है, आपके 10th के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके साथ थे, जिन लोगों को बायोलॉजी लेना है उनको आप अपना हमारा ये लिंक शेयर कर सकते हो और उनको आप हमारा रेफरेंस भी दे सकते हो। ओके।